میں اس جھیل کے پانی کو اور زیادہ میٹھا اور صاف محسوس کرتا ہوں۔ تم پہلے تو کبھی اس وقت نہیں آیا کرتے تھے۔ میں تمہیں الوداع کہنے آیا ہوں۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں شمالی علاقوں میں پالتو جانوروں کا جائزہ لینے جا رہا ہوں اور 3 دن سے پہلے نہیں آؤں گا۔ تم نے اس سے پہلے کبھی تنہا نہیں چھوڑا مجھے۔ شادی کرنے کے بعد میں تمہیں ہر جگہ اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں تمہیں ایسا کرنے پہ مجبور کر دوں گی۔ کارلوس اور کارڈو کہاں ہیں؟ وہ دونوں صبح صبح جانوروں کو چراگاہ لے گئے۔ واپسی پر شادی کا جوڑا تیار ملنا چاہیے مجھے۔ جیسی تمہاری مرضی۔ کیا مجلس ختم ہو گئی؟ جب عبدالرحمن شکار پر جاتا ہے تو کیا اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کسی دباؤ میں ہو، اسی لیے ماحول تبدیل کر لیا ہو۔ کیوں میں نے اسے کوئی کام سونپا تھا؟ جو بھی کچھ ہے میں یقین سے نہیں کہتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دونوں میاں بیوی کے تعلقات بہتر نہیں۔ بادشاہوں کے معاملات میں کسی کی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ عبدالرحمن تم نہیں، وہ محض تمہارا بیٹا ہے۔ تم اس کی شادی شدہ زندگی میں کسی قسم کی دخل اندازی مت کرو۔ باپ ہونے کے ناطے اتنا تو حق میں رکھتا ہوں کہ اس کی ازدواجی زندگی کے متعلق کچھ جان سکوں۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میں سب کچھ اچھی طرح جانتی ہوں۔ کسی جوان جوڑے کی شادی ہمیشہ ہی بس دوزخ اور جنت کے درمیان ڈولتی رہتی ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ جب ہم جوان تھے تو ہماری معاملات کیسے ہوتی تھی؟ یاد ہے نا؟ پھر بڑھاپا آ گیا اور تمام مسائل حل ہوتے گئے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے لڑنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ ارے کہاں جا رہی ہے تم؟ محسون سے ملنے۔ وہ اکثر تنہا ہی رہا کرتی ہے۔ نہیں، شاید جان کر ایسا کر رہی ہے۔ وہ عبدالرحمن کی وجہ سے اداس ہے اور مجھے نفرت ہے اس کی اداسی سے۔ اگر مجھے اجلاس میں نہ تھکایا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ مزید وقت گزارتا۔ تمہاری خواہش اس تک پہنچا دوں گی۔ اور میاں بیوی کے اس رشتے کے درمیان غیر جانب دار ہے۔ یہ سوچا نہیں تھا کہ تم اس معاملے کے متعلق پوچھو گے۔ کیا آپ اپنے شکار کو کھاؤ گے؟ میرا خیال ہے میں اسے پسند نہیں کرتا۔ مجھے تو شکار کا مزہ چاہیے، بس چکھوں گا نہیں اسے بالکل۔ کیا تم اس سے شرمندہ نہیں؟ میں نہیں جانتا کہ آخر میں پریشان کیوں ہوں۔ بھلا کون کون سے خیالات ستا رہے ہیں مجھے؟ تم چاہتے تھے کہ ہم یہاں آئیں اور لو ہم آ گئے۔ کمال کی جگہ ہے یہ۔ یہاں سے ڈوبتا سورج بہت شاندار لگتا ہے۔ غروب ہوتا سورج تو جہاں سے دیکھو ایک جیسا لگتا ہے۔ نہیں، یہاں سے دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے جو محل سے نہیں آتا۔ اے شہزادے، یہاں تو کم از کم مجھے شہزادہ کہہ کر مت پکارو، سمجھ گئے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نور من کا خط ہے میرے آقا، جو کہ اسپین کا بادشاہ ہے۔ ایک شخص ان کا پیغام لے کر آیا اور پھر چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے اسے جواب کی ضرورت نہیں تھی۔ نہیں آقا، ان کی مرضی تھی کہ انہیں ہمارا پیغام مل جائے۔ انہیں ہمارے نظریے سے کوئی دلچسپی نہیں۔
तुम जानते हो ये क्या कहता है? मुझे इसकी तवक्को थी मेरे आका। नूरमन उंदलस के जनूबी इलाके पे बहरी हमला कर देगा। इसके बहरी जहाज रास्ते में पड़ने वाले हर साहिल को तबाह व बर्बाद करके रख देंगे। हमें सिर्फ उसकी सल्तनत को तबाह करना होगा। उनका जरूर कोई मकसद है, तभी तो पैगाम दिया है हमें। कैसा मकसद? उन्होंने हमें एक जबरदस्त मौका दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें जाया नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है वो हमारे साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं। एक मुश्तरका जद्दोजहद, ताकि अरब सल्तनत का खात्मा किया जा सके। नूरमन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। वो तो सबके सब बहरी कज़ाक हैं। मुसलमानों को अबेरिया जजीरे से बेदखल करना हो तो शैतान का भी हाथ पकड़ लो। मेरी बात सुनो गौर से। अगर उंदुलस को तबाह और बर्बाद करना हो तो मेरी बात सुन लो तो मुशीर, नूरमन से हमारे ताल्लुकात बेहतर करो और हमारी दोस्ती मजबूत करो, क्योंकि वो समंदर के उस हिस्से के मालिक हैं जहां अरबों को धकेला जाएगा, जहां से वो शिकस्त खाके अफ्रीका भागने की कोशिश करेंगे। हम उनको समंदर में गर्क कर देंगे। क्या मैं मुजाहिदों के पीछे घर बैठ के बस दूसरी औरतों की तरह डफ बजाती रहूं और तुम्हें तुम्हारे कारनामे सुनाती रहूं जब तुम कमज़ोर पड़ने लगो, और जश्न मनाऊं तुम्हारी जीत पर और मातम करूं तुम्हारी मौत पर? जाओ जाके अपने सिपाहियों से कह दो कि मैदान जंग में यमामा को कोई कैद नहीं करेगा, क्योंकि जब ये लड़ती है तो फिर फातेह होती है या फिर शहीद। अल्लाह फजल करे अपने आका हाकिम और मेरे मालिक अब्दुल रहमान पर। अल्लाह तुम पर भी फजल करे। क्या चाहते हो तुम? मैं बताना चाहता हूँ कि एक बगावत उभरी है मरीडा में। कौन है कायद उसका? एक सलार जिसका नाम है हुमाम। ये कौन है? इसके दावे के मुताबिक इब्ने ज़ियाद का पोता है। क्या इनका ताल्लुक मंगोल कबीले से है? ज्यादातर का है। इनके साथ और कौन है? मेरी मालूमात के मुताबिक उनके साथ कुछ गैर मकामी अरब हैं। आका, अगर हमने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया तो ये मजीद खतरनाक होते चले जाएंगे। अच्छा नहीं करेंगे। आपकी क्या राय है मरेडा की बगावत के बारे में? मैं उनका इंतजार करूंगा ताकि वो और खुल के सामने आए, फिर जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। खुशामदेद शायर उंदलस, खुशामदेद हुर्रान कुर्तुबा के हकीम। तुम लोग यहाँ पे आए, तुम्हारा बड़ा शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। इतनी खुशदिली से मत करो हमारा इस्तकबाल। हम सिर्फ सामान देखने आए हैं, कुछ खरीदने नहीं। मुनाफे के मुकाबले में मुझे ये ज्यादा पसंद है कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। कुछ नहीं ताज़ा? ये क्या, हमने पहले कभी नहीं देखा इसे। जी हाँ, ये बिल्कुल नया है। नहीं, ये टिलाई टीला लोगों की इजाद है। आपको ये बहुत पसंद आया क्या? हाँ, क्या तुमने बनाया है इसे? ये तांबे का है जिस पर चांदी का काम है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ सब लोग दमिश्क का कहते हैं इसे। दमिश्की? जी हाँ, इससे उंदलस दमिश्क के लोग लाए थे और ये एक सौगात है। ये बताइए कि ये जेवर आपको कैसा लगा? क्या ये यहूदियों की नक्शोनिगारी है, खासकर ये कुंदाकारी? जी जनाब। ऐसा निशान ये दमिश्की नहीं हो सकता। टिलाई टीला में यहूदियों ने मेहनत करके अबूर हासिल कर लिया इस फन पे, और वो
अपने मखसूस निशानात भी लगाते हैं उस पे। इन यहूदियों ने तो बहुत ही बड़ी छलांग लगा दी है। जी हुजूर, और इनका ये सफर इस वक्त शुरू हुआ जब मुस्लिम अरबों ने कब्जा किया इनकी जमीन पर। और सच बात तो ये है कि जितने आसूदा आज हैं ये, इससे पहले कभी ना थे। इन तमाम मामलात से जो महल में और उंदलस में रूनुमा है, क्या मुझे इन सब से परेशान होना चाहिए? तुम्हारी रूह तुम्हारे मुल्क और औलाद के साथ दोनों बढ़ चुकी है। मैं जानती हूँ कि वो तुम पर कितना बोझ डाल रहा है, लेकिन तुम अपने बेटे और मैसून के बारे में इतना परेशान क्यों रहते हो, जबकि वहाँ मरेडा में तो बगावत चल रही है। तुम अपनी तवज्जो बगावत की तरफ कर लो। अब्दुल रहमान का रिश्ता मेरी पसंद है। एक उमैया नस्ल होने के नाते मैंने मैसून का इंतखाब इसलिए किया ताकि अपने और शाम के दरमियान ताल्लुक पैदा कर सकूं। क्या ये सही नहीं था? क्या मैंने कुछ गलत किया? वो जब कभी लड़ते झगड़ते हैं मुझे नजरअंदाज करने लगते हैं, लेकिन उसे नहीं। मुझे शुरू से ही ये नहीं करना चाहिए था। नहीं, सिर्फ और सिर्फ एतमाद ही काफी नहीं होता। ऐसे मसलों में भरोसा करना भी बहुत जरूरी होता है। अपने बेटे को मेरे और मैसून के लिए छोड़ दो। मियाँ बीवी दोनों का झगड़ा उनकी ख्वाबगाह में ही तय हो जाता है। तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना, हम भी इन मसाइल से गुजर चुके हैं। फिर हम वक्त के साथ साथ बूढ़े होते गए और लड़ने के काबिल ही नहीं रहे। क्या हमारे सारे इख्तिलाफात हमारी कुर्बत में नहीं बदल गए? वो भी ऐसे ही कुछ करेंगे। लिहाजा यकीन रखो और फिक्र मत करो। ऐसी बातें चलती ही रहती हैं। तुम अपने बेटे और मैसून के बारे में इतना परेशान क्यों रहते हो? अपने इजलास में जाओ और भूल जाओ इन मसाइल को। अल्लाह खैर करेगा। ऐसी बातें चलती ही रहती हैं। सुंदर सिताने